بلوچستان کے علاقے بیلا میں چینکی سٹاپ کے قریب مسافر کوچ کھائی میں جا گری۔ خوفناک حادثے میں دوزوں کی چاندی ہو گئی۔ عوام پیٹرل کرتے رول گئی۔ حکومت نے پیٹرل مہنگا کر کے مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کا بیٹھے بٹھے کروڑوں کا بھلا کر دیا۔ پیٹرل کے لیے دربدر شہریوں کی جیبیں بھی خالی ہونے کمر توڑ مہنگائی کے وار جاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے نوشہرہ کے شہری آگ بگولا ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں تحسین الابرار کی اس رپورٹ میں۔ پیٹرول کی قلت تو برقرار ہی تھی کہ وزیر خزانہ 35 روپے اضافے نے پیٹرول بم عوام کے اوپر گرا دیا تو عوام کا جینا اور بھی مشکل ہو گیا۔ شہریوں نے قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ مسترد کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ واپس لے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ پیٹرول تو مہنگا ہوا ہے، ڈیزل بھی ہوا ہے، اس سے ظاہری بات ہے مہنگائی بھی ہو رہے گی۔ تو پہلے جو ملکی حالات ہے اس میں تو پہلے ہی آٹا نہیں مل رہا ہے، لیکن ہمارے لیے اور مشکلیں بڑھیں گی۔ تو ہماری تو حکومت سے یہ اپیل ہے کہ ہمارے پہ کچھ رحم کیا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے آنے والے مہنگائی سے غریب شہریوں کے لیے دو وقت کا کھانا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ تحسین الابرار، سچ نیوز، نوشہرہ۔ مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کے مہنگائی کی دلدل میں دھنسے عوام پر ایک اور بوجھ۔ کمالیہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کے ہوش اڑا دیے۔ رپورٹ کریں گے اسد راجپوت۔ کمالیہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک دم اتنے اضافے پر شہریوں میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اچانک ہی پیٹرول 35 روپے فی لیٹر پر اضافہ کرنے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا، جس سے شہریوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ حکومت عام آدمی کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ کا جو ہے نا 35 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ عوام پہ ظلم ہے اور حکومت جو ہے نا مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے عوام کو ریلیف دینے میں۔ ہم حکام اعلیٰ سے اپیل کرتے ہیں کہ عوام کو جو ہے نا ریلیف دیا جائے۔ گورنمنٹ نے بہت مہنگائی کر دیا اور غریب آدمی پس کے رہ گئے ہیں، لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو ریلیف دیں۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے عوام کی مشکلات میں اور اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول کی قیمت کو کم کیا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومتی معاشی ٹیم عام آدمی کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے بجلی، اشیاء خورد و نوش اور کرایوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ حکومتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں، لیکن ایک دوسرے پر الزام تراشی کر کے بری الذمہ ہو جاتی ہیں، لیکن عام آدمی کی مشکلات میں کمی نہیں ہو رہی۔ حکومت وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فیصلے کو فی الفور واپس لے۔ اسد راجپوت، ساچی نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ پاک پتن شریف میں پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا۔ غریب عوام کے لیے پریشانی ہی پریشانی۔ نذیر احمد کھرل کی رپورٹ۔
हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुकर्रर तारीख से पहले और छुट्टी वाले दिन होशरबा इजाफा कर दिया है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया है। डीजल की नई कीमत 264 रुपए जबकि पेट्रोल की नई कीमत 250 रुपए 76 पैसे हो गई है। डीजल और पेट्रोल के रेट सुनकर आवाम के ओसान खता हो गए हैं। पहले ही बेरोजगारी गुर्बत में फंसी आवाम किधर जाए, कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत वक्त से मुतालबा है, एक तो जो रेट थे पेट्रोल के वो एक मुकर्रर तारीख तक बढ़ते थे, तो अभी उन्होंने पहली तारीख की बजाय वो आप 29 तारीख को रेट बढ़ा दिया है, ठीक है ना। इसीलिए तो हम तो वैसे भी परेशान हैं, 35 रुपये का इजाफा हुआ है पेट्रोल का, तो हमारे लिए तो अभी घर से बाहर निकलना भी मुहाल हो चुका है। दिहाड़ीदार और मजदूर तबके का मजीद कहना है कि पहले घी और आटे के रेट हमारी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है, मजदूरी कम और महंगाई बहुत ज्यादा है। पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टर भी किराया बढ़ाएंगे। अब 2 वक्त के खाने के साथ साथ सफर करना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई में पिसी अवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि बराए मेहरबानी जो इजाफा किया गया पेट्रोलियम मसनूआत में इसे फौरी वापस लिया जाए। हम में सकत नहीं है इसे बर्दाश्त करने की। कैमरामैन राशिद अंजराग के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाकपतन शरीफ। महंगाई के सताए आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। बानावाला में पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस आवाम शदीद परेशान हैं। शेर मोहम्मद जरगर की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह मानावाला में भी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मानावाला में शहरियों ने इसको मुस्तरद कर दिया है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत की वजह से ना गरीब आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो गया है कि हुकूमत को चाहिए कि ये पेट्रोल की कीमतें वापस लें। दूसरी तरफ मानावाला के शहरियों का कहना है कि पहले ही 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से कमा रहे थे, लेकिन ऊपर से हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें ज्यादा कर दी हैं। हम कैसे अपने बच्चों का पेट पाल सकें। मानावाला के शहरी जो है उनका यही कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में जो ये इजाफा किया गया है, इन कीमतों को वापस लिया जाए। कैमरा टीम के साथ मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। पिसरोर में महंगाई का सुनामी आ गया। पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अजहर। पसरूर हुकूमत की तरफ से एक बार फिर गरीब अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया, जिससे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। गरीब वास्ते एक मुसीबत बन गई है ना कोई पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी, हर इन्नी को महंगाई हो गई है। तो असी ये लोग गरीब आवाम वास्ते भला कर देने आवाम ते की करना चाहिए। शहरियों का कहना है कि पहले ही इतनी महंगाई है, 2 वक्त की रोटी कमाकर खाना भी मुश्किल हो चुका है। ऊपर से पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से पेट्रोल की कीमत कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज़, पसरूर। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। सादिकाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया गया। गरीब आवाम सर पकड़ कर बैठ गए। हमादुल्लाह की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। शहरियों का कहना था कि पहले ही हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, ऊपर से हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। पूरा गरीब तबका पहले पिसा हुआ है महंगाई की वजह से, ऊपर से ये पेट्रोल का बम गिराना गवर्नमेंट की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि फ़ौरन पेट्रोलियम मसनूआत की में जो इजाफा किया है उसको वापस लिया जाए। पेट्रोल 35 रुपये लीटर महंगा हो गया है, इस वजह से गरीबों को बहुत ही नुकसान हो रहा है और तंगी पेश आ रही है। जो 35 रुपये पर लीटर गवर्नमेंट ने इजाफा किया है पेट्रोल में और अपना डीजल में, ये एक बम की तरह आवाम के ऊपर गिरेगा, जिसकी वजह से ये चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी और मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि लोगों को और गरीब आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया। शहरियों ने हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फिल फौर पुरानी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहाल की जाएँ ताकि गरीब आदमी अपना गुजर बसर चला सके। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, सादिकाबाद। तांदियावाला में पेट्रोल और डीजल का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। पेट्रोल के हुसूल के लिए शहरी जलीलो ख्वार होने लगे। मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट। तांदलेवाला शहर और इसके कस्बात में पेट्रोल और डीजल नायाब हो गया।
जिसके बायस मुसाफिर पेट्रोल के हुसूल के लिए शदीद परेशान हैं। तहसील तांदलेवाला में पेट्रोल और डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पेट्रोल डीजल की किल्लत के बायस किसान रुल गए। ट्रैक्टर ट्राली से गन्ने की भरी ट्रालियां रुक गईं। तांदलेवाला के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों का पेट्रोल और डीजल की अदम दस्तयाबी पर अलामती एहतजाज करते हुए कहना था कि सुबह से पेट्रोल और डीजल के लिए चक्कर लगाकर थक चुके हैं, मगर पेट्रोल हाथ नहीं आ रहा। हुकूमत की महंगाई की दलदल में फंसे शहरियों पे मजीद महंगाई का बोझ आम तबका का कत्लेआम है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा कि वजीर आजम महंगाई पे नोटिस लेकर कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर वापस ले। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। गाजी खान में पेट्रोल की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। हर चीज गरीब आवाम की दस्तरस से बाहर हो गई। मोहम्मद अली मीरानी की रिपोर्ट। गाजी खान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशबार इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। पहले भी अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, अब मजीद महंगाई का रेला आने वाला है जो गरीब अवाम को अपने साथ बहा के ले जाएगा। कैसी हुकूमत है जो अवाम को रिलीफ देने की बजाय अवाम को महंगाई की चक्की में पिसी जा रही है। हुकूमत ने जरा अचानक पेट्रोल का रेट चढ़ाए, ये अवाम की बहु जड़ा ना हादसा मिले। गरीब अवाम का रणी को पानी लावन का मौसम है, पानी डीजल के बगैर नहीं चलता पीटर ते। उस तो बाद भी इन्होंने जरा काम किया कि अचानक 29 तारीख को है कि पालीदा होंगे या 15 तारीख को होंगे कि तेल महंगा या सस्ता थी ना है। IMF के पास पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। अवाम का कहना है कि हम आज़ाद पाकिस्तान में नहीं बल्कि IMF के मकरूज पाकिस्तान में रह रहे हैं। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच TV, गाजी खान। लिया में महंगाई का तूफान न थम सका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के सबब महंगाई में इजाफे का खदशा है। रोज बरोज की बढ़ती महंगाई ने आम आदमी से जीने की सकत छीन ली। जहूर दुरानी की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का महंगाई में बुनियादी किरदार है। हुकूमत की जानिब से अचानक ही 35 रुपए 35 पैसे डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के ऐलान ने महंगाई में पिसती आवाम को बड़ा सरप्राइज दे दिया। हालिया इजाफा से महंगाई का एक तूफान सा आने का खदशा है। ये जो 35 रुपए का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है, ये आवाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। पेट्रोल की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जलालपुर पीरवाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सुनकर शहरी बिलबिला उठे। रिपोर्ट करेंगे सातुल्ला बत्ती। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 35 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने से जलालपुर पीरवाला के शहरी हुकूमत से शदीद नाला दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने की बजाय उल्टा महंगाई बढ़ाती चली जा रही है। आम आदमी का जीना दुश्वार होकर रह गया है। अवाम कहाँ जाए। जो है 35 रुपए रेट बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो गई है। मज़दूर की जो रोज़मर्रा की जो दिहाड़ी है वो 500 रुपये पे खड़ी हुई है, उसके लिए बहुत मुश्किलात बढ़ गई हैं। 35 रुपये बढ़ गया है, महंगाई बहुत है। अब गरीब लोग क्या करें, इतनी महंगाई हो रही है कि हर शय बढ़ गई है। शहरियों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि खुदारा पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं, वरना अवाम महंगाई की इस चक्की में मजीद पिस कर रह जाएगी। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। तरनौल में भी पेट्रोलियम की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। दूसरी जानिब पेट्रोल के हसूल के लिए शहरी जलीलो ख्वार होने लगे। हाफिज शेर अफजल की रिपोर्ट। तरनौल में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को बंद कर दिया। शहरी लंबी लाइनों में पेट्रोल और डीजल की हुसूल के लिए इंतजार करने लगे और दूसरी तरफ हुकूमत वक्त ने 35 रुपए फी लीटर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। शहरियों ने हुकूमत वक्त की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में के इजाफे को फिलफौर मुस्तरद कर दिया। मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को हम यकसर मुस्तरद करते हैं। हम ये समझते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यकदम 35 रुपए लीटर के इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान इस मुल्क में आएगा। पेट्रोल लाना ला के मिल रहा है, रक्षा चलाने वाला 4-5 बंदे हवन, मकान किराए से होवे, गरीब बंदा किधर जाए। शहरियों का मजीद कहना है कि तरनौल में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप मालकान कीमत पूरी लेते हैं, पेट्रोल कम पैमाने पर फरोख्त करते हैं। इंतजामिया उनके खिलाफ फिलफौर एक्शन ले। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज़, तरनौल। मुल्क में महंगाई की जलकार, आवाम ने भी मान ली हार। सस्ते न रहे बचत बाजार। शहरी कहते हैं महंगाई ने जीना महाल कर दिया। आखिर किसको बताएं, ऐसे जीने से तो मर ही जाएं।
महंगाई ने अवाम के फिर 14 तबक रोशन कर दिए। मुंह जोर हुई फिर गिरानी, अवाम को आली नई परेशानी। एक हफ्ते में अवाम के हिस्से में आई महंगाई ही महंगाई। रवा हफ्ते 25 अशिया की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। LPG का घरेलू सिलेंडर 136 रुपए महंगा हुआ। प्याज के दाम 13 रुपए फी किलो बढ़े। चावल 5 रुपए, टमाटर 2 रुपए 18 पैसे फी किलो महंगे हुए। 20 किलो आटे का थैला 33 रुपए महंगा हुआ। दालों के दाम भी बढ़ गए। आम बाजारों में महंगाई की यलगार से परेशान शहरियों ने सस्ते और बचत बाजारों का रुख किया तो वहाँ भी सिवाय मायूसी के कुछ न मिला। शहरी जिस चीज को हाथ लगाएं वही दुगने निर्खों से हाथ जलाएं। शहरियों की अरबाबे इख्तियार से दुहाई, आखिर कब जान छोड़ेगी महंगाई। मंडी बहाउद्दीन में मसनूई महंगाई ने आवाम को चीखने पर मजबूर कर दिया। अशिया खुरनोश की कीमतों में हुशरुबा इजाफे ने गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी खाने का हक भी छीन लिया। इरफान बड़ाइश की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन में महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को ग़िज़ाई बहरान ने अपनी लपेट में ले लिया। महंगाई की वजह से लोगों को दिन में तारे नजर आने लगे। आटे के बहरान के बाद अब पेट्रोल भी नायाब हो गया। जिली इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ। चीनी, दालें, सब्जियां, गोश्त पहले ही गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। शहरियों का कहना है कि एक वक्त की रोटी पूरी नहीं होती कि दूसरे वक्त के खाने के लाले पड़ जाते हैं। महंगाई से सफेद पोश और मतवस्त तबका पिसका रह गया है। खुद साख्ता महंगाई करने वाला माफिया कई गुना इजाफा करके अवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है। महंगाई अरूज पर है। घी, आटा, दालें ये हमारी पहुंच से दूर है। लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है कि गरीब आदमी का ख्याल करे और इस पर हमें रिलीफ। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि रोजमर्रा अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में नुमाया कमी की जाए ताकि लोग बआसानी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कर सके। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। हासिलपुर में शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। अशिया खुरनोश की कीमतें कम न हो सकें। सैयद मुबारक अली शमसी की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह तहसील हासिलपुर में भी महंगाई अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान हैं। घी, चीनी, आटा और दालों के साथ साथ प्याज, लहसुन समेत तमाम सब्जियां और मौसमी फ्रूट भी आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली अशियाए खुरनोश के हसूल की खातिर सुबह से लेकर गरूब आफ्ताब तक आवाम की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से पुरजोर अपील की है कि वो इस बदतरीन महंगाई को कंट्रोल करके गरीब आवाम के हाल पर रहम करे ताकि वो आसानी से अपने अहल व अयाल को 2 वक्त का खाना खिला सकें। कैमरामैन मकबूल अब्बासी के हमरा सैयद मुबारक अली शमसी, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज़, हासिलपुर। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। चीचाबत्ती में अशिया खुरनोश के निर्ख आसमान पर पहुंच गए। दुकानदार मनपसंद रेट वसूल करने लगे। महर अजहर की रिपोर्ट। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की चीखें निकाल दी हैं। आटा, घी, चीनी के साथ साथ सब्जियां और फ्रूट भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। 150 रुपए दर्जन केला, 250 रुपए, सेब, प्याज 220 रुपए किलो गरीब आवाम को मुंह चढ़ा रहे हैं। गरीब आवाम देख तो सकती है मगर खरीद नहीं सकती। यहाँ प्याज का रेट है 230 और 240। जो गवर्नमेंट रेट है वो बहुत कंट्रोल नहीं कर रहे। वो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको कंट्रोल करे, आवाम को रिलीफ मिले। गरीब आवाम का मौजूदा हुकूमत को यही कहना है कि प्राइस कंट्रोल किए जाएं और उन्हें रिलीफ मुहैया किया जाए। महर अजहर, सच न्यूज़, चीचावर। मुल्क भर में महंगाई का शोर। गुजरात में अशिया खुरनोश समेत सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। मुनाफाखोर आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। वाजिद भट्ट की रिपोर्ट। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई की वजह से गुजरात के शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। दालें, फल, सब्जियां, आटा, तमाम चीज़ों के रेट आसमान से बातें करने लगे। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि गरीब आदमी फाका करने पर मजबूर। वो महंगा हो गया, दालां महंगियां हो गई ने, चने महंगे हो गए ने, सब्जियां महंगियां हो गई ने, पेट्रोल भी कोई नहीं लभदा पे लैना च लगना पैंदा वे। फिर ने वो भी मजदूरी बंदा की करे, मिस्त्री है कोई नहीं। हुकूमत जरा मेहरबानी करे, साडे नाल राबता करे गरीब बंदियां नाल, तो कोई निज़ाम चलाए साडा भी। असी निके निके बच्चे ने भुखे मर चले हैं, कोई शै है ही नहीं। आटा भी नहीं देंदे पे, दालां, घ्यो, चीनी, हर शै, प्याज सब कुछ महंगा हो गया वे। तो मजदूरदार बंदा जरा वे दिहाड़ी 800 दी हज़ार दी ला के जिहदे 4-5 बच्चे ने किकन गुजारा कर सकता है। बढ़ती महंगाई ने शहरों के होश उड़ा कर रख दिए। अशियाए खुर्दोनोश में इजाफे की वजह से गरीब तबका 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासर होकर रह गया। गुजरात के शहरियों ने महंगाई के खिलाफ हुकूमत वक्त से फिर फौर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ वाजिद बार, सच न्यूज़, गुजरात।
हाय रे महंगाई, आवाम की जान पर बनाई। साहिवाल में क्रॉकरी की कीमतों में होशरुबा इजाफा, मुतवसत तबका भी हुआ परेशान, कोई सुनने वाला नहीं। बाबर सिद्दीकी की रिपोर्ट। साहिवाल में क्रॉकरी की कीमतों में बेशुमार इजाफा हो गया। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया में क्रॉकरी को बुनियादी हैसियत हासिल है। इसके अलावा माशरे में जहेज जैसी लानत आम हो चुकी है। सामान जहेज का लाजमी जुज होने के सबब क्रॉकरी की अहमियत मजीद बढ़ गई, मगर फैक्ट्री में खाम माल न होने के बायस क्रॉकरी की कमी है। इस शॉर्टेज से माल महंगा हो गया, जिससे कारोबार तबाह हो गया। हम लोगों में एक मसला हो रहा है कि हम कहते हैं कि पीछे से माल महंगा आ रहा, ऊपर से दुकानदार जब बेचता है तो कस्टमर ये कहता है आप लोगों ने महंगा करना कर दिया। कैसे करें? हम लोग कंपटीशन में बैठे, साथ साथ दुकानें हैं, हर दुकानदार के खराजात है, वो तो चीज़ जैसे खरीदता है उसका मुनासिब प्रॉफिट रख के बेचने की कर। जबकि खरीदारों का कहना है कि क्रॉकरी खरीदने आए हैं, रेट हमारी कुव्वत खरीद से बाहर है। जो सामान पहले 50,000 में खरीद लेते थे, अब वही सामान 1 लाख रुपए में मिल रहा है। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਜ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਅਖਰਾਜਾत चीज़ां जो बढ़ाते हैं कि दुनिया बेबस हुई। क्रॉकरी सामान जहेज समेत हर घर की बुनियादी जरूरत है। बाबर सिद्दीकी, सच न्यूज, साहिवाल। कबीरवाला में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहरी महंगे दामों लकड़ी और LPG खरीदने पर मजबूर हैं। चौधरी राहिल रियाज की रिपोर्ट। कबीरवाला के शहर अब्दुल हकीम में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने घरेलू रोजमर्रा की जिंदगी अजीरन बना दी है। गैस की लोड शेडिंग के बाद या तो शहरी होटलों का गैर मियारी और महंगा खाना मंगवाने पर मजबूर हैं, या फिर सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस LPG गैस सिलेंडर महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। कबीरवाला अब्दुल हकीम में LPG डीलर्स नाकिस ईरानी गैस हुकूमत की जानिब से जारी करदा रेटों से जायद नरखों पर सरेआम सेल कर रहे हैं। दूसरी जानिब सुई गैस की तवील लोड शेडिंग और LPG गैस की कीमतों में इजाफे के बायस लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। चंद रोज कबल 800 रुपए फी मन फरोख्त होने वाली लकड़ी 1200 से 1500 रुपए फी मन फरोख्त हो रही है। अब्दुल हकीम में गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। हम 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे गैस आती है, जिसका बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। बाज़ार जाते हैं, बाज़ार सिलेंडरों वाले और लकड़ियों वाले हमसे मुंह मांगे रेट लेते हैं। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हम पे थोड़ा रहम खाएं। हमारे जो अब्दुल हकीम में लोड शेडिंग चल रही है गैस के हवाले से, उसे सॉल्व किया जाए। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से सताए शहरियों ने हुकाम आला से सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग, LPG गैस और लकड़ी के बढ़ते हुए बेलगाम दामों पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहिल रियाज, सच न्यूज, कबीरवाला। मुजफ्फरगढ़ में निकासी आप का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गंदा पानी, उबलते गटर अहले इलाका के लिए वबाल जान बन गए। ताफुन और गंदगी बीमारियों को दावत देने लगा। इंतजामिया मंजर आम से गायब है। समीउल्लाह की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ की म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली के सबब गली महल्ले सीवरेज सिस्टम की खराबी के बैस गंदा पानी जमा होने से जोहर की सूरत इख्तियार कर गए हैं। शहर के गुंजान आबाद इलाके, हयात नगर, इनामाबाद, महल्ला रसूलाबाद, बुखारी वाला, कैम वाला, टिब्बा करीमाबाद और दीगर इलाकों में सीवरेज सिस्टम की खराबी के बैस गंदा पानी मकीनों के घरों में दाखिल होने लगा। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया के जिम्मेदारान सीवरेज के मसाइल कंट्रोल करने में यकसर नाकाम है। शहर की गली महलों में गंदगी के ढेर लग गए हैं, जबकि निकासी आब ना होने से गंदा पानी गलियों में जमा होने लगा है, जिससे शहरियों और खसूसन खवातीन को आमद-ओ-रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। मुजफ्फरगढ़ सिटी, मुजफ्फरगढ़ के जितने भी एरिया हैं अंदरूनी शहर के, इस टाइम सीवरेज का निज़ाम इतना ख़राब हो चुका है कि बेतहाशा। गटरों के ढकने बिल्कुल टूटे हुए हैं। तो DC साहब से रिक्वेस्ट है कि बड़ाए मेहरबानी इनकी तरफ तो तवज्जो करें। सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर होने और नकासी आब ना होने से ताफुन फैलने लगा है, जिससे मुतअद्दी इमराज फैलने का इंदिशा है। बल्दिया हुकाम मसाइल पर काबू पाने में नाकाम है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि खुदारा सीवरेज सिस्टम को ठीक किया जाए ताकि हमारे बच्चे बीमारियों से बच सकें। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। सुई गैस की बंदिश के खिलाफ दारंग मंडी में खवातीन सरापा एहतजाज बन गई। महकमा सुई गैस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुअज़्ज़म नवाज की रिपोर्ट। सुई गैस की बदतरीन बंदिश के खिलाफ शहरियों का सबर जवाब दे गया। अंजमन मामिया के सदर चौधरी सदाकत अली डगरा की ज़ेरे क़यादत मर्दों और खवातीन ने एहतजाजी रैली निकाली। इस मौका पर उन्होंने कहा कि सारा दिन सुई गैस नहीं आती। पूरा महीना हमने एक दिन भी सुई गैस इस्तेमाल नहीं की। इसके बावजूद 4000 रुपये सुई गैस का बिल थमा दिया गया है। होशरुबा महंगाई में हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। हम 4000 रुपये सुई गैस का बिल कैसे जमा करवाएंगे? 300 रुपये LPG गैस सिलेंडर और 1200 रुपये फी मन खुशक लकड़ियाँ हमारी कुफ्ते खरीद से बाहर हैं। सुई गैस ना होने की वजह से हमें मुतबादल ज़राए का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि हमारी कुफ्ते खरीद से बाहर है। 5 महीने हो गए ना गैस नहीं आ रही। असि यह बिल कादा 3200 रुपया देंगे, 3200 रुपया असि बिल कादा देंगे जी। तो सानू गैस नहीं मिल रही। असि लकड़ियाँ
1400 रुपया किलो माड़ किवें लिया के ते गुजारा करांगे, गोए किथों लियावांगे, आटा पूरा किथों करांगे, बच्चे किवें पढ़ावांगे? जे ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਤਾਰਾਂਗੇ, ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੇ ਜੀ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗੋਏ ਬਾਲ ਕੇ ਗੈਸ ਭਰਵਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਸ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਗੇ। ਨਾ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ पुरजोश एहतजाज किया जाएगा। सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि सुई गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सुबह दोपहर शाम 3 औकात में सुई गैस फराहम की जाए ताकि हम बच्चों के लिए खाना पका सकें। खानेवाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में LPG रिफिलिंग का धंधा जारी है। LPG गैस की दुकानों पर हादसात मामूल बन गए, कोई पूछने वाला नहीं। सलमान फरीद बड़ाश की रिपोर्ट। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह जिला खानेवाल में भी मुसाफिर बरदार गाड़ियों में गैर कानूनी तरीके से LPG गैस भरने का सिलसिला जारी है। शहर भर में 1 दर्जन से जायद ऐसी दुकानें मौजूद हैं जहां पर गैर कानूनी तरीके से गैस फरोख्त की जा रही है। गैस वाली गाड़ियां कई बार मुख्तलिफ हादसात का बायस भी बनी हैं, मगर खानेवाल में जिलाई इंतजामिया टस से मस नहीं हुई। हमें ड्राइवर हाई के हमें तो कुछ नहीं बच रहा। 320 रुपये रेट है और सब जो गैस है पैसे इकट्ठे होते हैं गैस में डाल जाते हैं। हमें तो कुछ नहीं बच रहा, इतनी महंगी गैस है। मजबूरी के तहत असीं डलवा रहे हैं सर। गैस इतनी महंगी है कि सानू गड्डी वाले नूं कुछ भी नहीं बचता। शहर के मुख्तलिफ गुंजान आबाद इलाकों में गैस की रिफिलिंग का मकरू धंधा जारी है। लाहौर मोड़, पुराना खानेवाल, रकब रेलवे रोड, रेलवे माल गोदाम के साथ रेलवे की सरकारी ज़मीन पर LPG गैस की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त की दुकानें इंतजामी अफसरान की मौजूदगी में काम कर रही हैं, मगर मजाल है कि इंतजामिया ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। शहरियों का कहना है कि जिलाई इंतजामिया फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए मुसाफिर बरदार गाड़ियों में LPG की गैर कानूनी रिफिलिंग को बंद करवाए और इस मकरू धंधे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के हमरा सलमान फरीद वड़ाइश, सच न्यूज़, खानेवाल। दादू में तजावजात की भरमार है। इंतजामिया ने आंखें मूंद ली। रिक्शा ड्राइवर्स ने सड़कों के अतराफ डेरे जमा लिए। मीर शहदाद खान की रिपोर्ट। दादू शहर में भी तजावजात की भरमार के बाद शहर से शहरियों का पैदल गुजरना भी मुश्किल हो गया। शहर के मुख्तलिफ रास्तों के दोनों अतराफ पर नाजायज तजावजात के बाद ट्रैफिक की आमदरफ्त जाम रहना भी मामूल बन गया, जिसके बाद शहर से रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी करने के लिए आने वाले शहरियों को शदीद दुश्वारी पेश आने लगी। ये इजाफी जो कर रहे हैं इसे समझो को कब्जागिरी, तो इनको कानून की गिरफ्त में आके शहरों की जो सही तरीके से आने जाने की तकलीफ है वो दूर करे। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि शहर से नाजायज तजावजात खत्म करवाने के लिए इंतजामिया अपना अहम किरदार अदा करे, जैसे शहरियों की आमदरफ्त में आने वाली दुश्वारी खत्म हो सके। कैमरामैन टीम कैमरा मिर्शदाद खान, सच न्यूज़, दादू। चौक सरवर शहीद में करोड़ों की लागत से बनने वाला सीवरेज का नाला करप्शन की नजर हो गया। साजिद अली की रिपोर्ट। चौक सरवर शहीद के कोटदू रोड पर रोड की तामीर का सिलसिला जारी है। रोड के साथ साथ सीवरेज के पानी के निकासी के लिए करोड़ों रुपए की तखमीना लागत से बनने वाला सीवरेज का नाला करप्शन की नजर हो रहा है। ठेकेदार की जानिब से मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के बहस नाला चंद माह के बाद ही नकारा हो जाएगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ अमल है। ये जो है ना मेन नाला बन रहा है कोटदू पर तहसील चौक सरवर शहीद में, तो ये करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जाने वाला जो है नाला करप्शन की नजर हो रहा है। इसमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। ठेकेदार जो है नाकिस मटेरियल यूज का इसमें इस्तेमाल कर रहा है। तो हमारा हुकाम बाला से ये अपील है कि वो फिल फॉर इसका नोटिस लें। सियासी और समाजी हलकों ने कमिश्नर DG खान और डिप्टी कमिश्नर कोटदू से मुतालबा किया है मेन सीवरेज नाला की मुरम्मती का काम का जायजा लिया जाए और नाकस मटेरियल इस्तेमाल करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ अब्बासपुर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुबशिर नकवी की रिपोर्ट। इस्लाम वो वाहिद मजहब है जहाँ किसी भी मजहब के पेशवा या मजहब की तौहीन को जुर्म समझा जाता, मगर आए रोज मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने के लिए मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों की जानिब से इस्लाम दुश्मनी में शायर इस्लाम, अंबिया इकराम या कुरान पाक की बेहुरमती से मुतल्लक खबरें आती रहती हैं। गुज़िश्ता दिनों स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई, जिसके खिलाफ आलम इस्लाम में शदीद बेचैनी पाई जाती है। पूरी दुनिया में मुसलमानों ने स्वीडन में होने वाली इस गुस्ताखी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इसी सिलसिले में अब्बासपुर आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाज हुआ।
जहां अंजमन ताजरान, मजहबी समाजी शख्सियात और इनके अलावा सहाफ़ी और वकला बरादरी की कसीर तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। अंजमन ताजरान ने स्वीडन की मसनूआत का बाइकाट कर दिया। जहां शुरकाए जलसा का कहना था पाकिस्तान स्वीडन के साथ अपना सफारती ताल्लुक खत्म करते हुए वहां से अपने सफीर को वापस बुला ले। शुरकाए जलसा का कहना था इस्लाम पुरअमन मजहब है जहां किसी भी मजहब की तौहीन को हौसला अफजा नहीं समझा जाता और न ही अपने मजहब से मुतल्लिक कोई बात बर्दाश्त की जाएगी। कैमरा टीम के साथ मुबशर नकवी, सच टीवी, अब्बासपुर, आज़ाद कश्मीर। कोहाट में तांदा डैम में सैर के लिए आए सयाहों की कश्ती डूब गई, जिसके नतीजे में 10 बच्चे जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर कोहाट के मुताबिक कश्ती में मदरसा के मुतादिद तलबा सवार थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। तांदा डैम से अब तक 15 बच्चों को निकाल लिया गया। हादसे में 10 बच्चे अबदी नींद सो गए जबकि 8 बच्चे अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। तेज रफ्तारी के सबब हादसात मामूल बन गए। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 7 मुसाफिर लुक़मा अचल बन गए। मंजिल मिली ना मिली और मौत मिल गई। बहावल नगर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे में 6 अफराद जान से हाथ धो बैठे। जहलम में ट्रक खाई में गिरने से एक शख्स जान से गया। जैकबाबाद में थाना सदर के इलाके फौजी फाटक के करीब मुसाफिर कोच उलट गई। बस में सवार 26 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन समेत बच्चे भी शामिल हैं। हौसले बुलंद हों तो इंसान हर मुश्किल से टकराने का आज़म रखता है। जैकबाबाद का रिहायशी अली हसन इस जुमले की अमली तस्वीर है। मजीद जानते हैं दोस्त लाशारी की इस रिपोर्ट में। हौसले बुलंद हो तो माजूरी भी रास्ता रोक नहीं सकती। जैकबाबाद के इलाके बोलान मोहल्ला के मकीन 30 साल अली हसन एक पाँव से माजूर होने के बावजूद अपनी मदद आप के तहत सब्जियां फरोख्त करके बच्चों का पेट पाल रहे हैं। कभी किस इलाके में जाते हैं, कभी किस गांव में जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। हम माजूर आदमी है, रक्षे को रेडी नहीं चला सकते, हम रक्षे को लेकर हमने रेडी बना दिया है। सारा दिन सब्जियां बेचने के बाद 500 से 600 रुपए कमा के इस महंगाई के दौर में गुजर बसर मुश्किल से होता है। माजूर अली हसन ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि बैतुल माल और उशर ज़कात से माली मुआवनत की जाए। हौसले बुलंद हो तो माजूरी भी रास्ता नहीं रोक सकती। 30 साल अली हसन माजूर होने के बावजूद भी सब्जियां बेचकर अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। कैमरामैन आया सुमरो के साथ दोस्त लाशारी, सच न्यूज़, जैकबाबाद। मोरो में सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। दाइम दरसाई की रिपोर्ट। मोरो में बरसात सैलाब मुतासरीन में सिंध ग्रेजुएशन और मजहर फाउंडेशन की जानिब से स्किन की मुफ्त इलाज के लिए एक रोज़ा मुफ्त कैंप का इनेकाद किया गया। स्किन के मुफ्त कैंप में डॉक्टर मजहर अली करड़ो, सगा मोरो रहनुमा मोहम्मद असलम आबासी, लेक्चरार शमशाद सुमरो, फराज सोलंगी, सोशल समाजी वर्कर मोहम्मद असलम अमीन आराई और दीगरों ने शिरकत की और अपना सब सोशल समाजी काम सर अंजाम दिया। स्किन डिजीज के हवाले से जिल्द की कैंप लगाई गई है, जो मजहर फाउंडेशन कराची से डॉक्टर साहब डॉक्टर जावेद मेमन और उसकी टीम यहाँ पे आए हैं। जो है जब से बरसात पड़ी है और जो है गंदा पानी, गंदा खाना, गंदी चीज़ें आ गई हैं, स्किन डिजीज के मतलब है केसेस बहुत बढ़ गए हैं। दूसरी जानब से लोगों का कहना था कि स्किन की बीमारी में मोरो शहर में बहुत ज्यादा फैल चुकी है। एक रोजा कैंप से कम लोगों को फायदा होगा। उन्होंने मोरो शहर की इंतजामिया और सोशल समाजी वर्कर से मुतालबा किया है कि मोरो में हफ्तेवार स्किन कैंप का इनेकाद किया जाए ताकि स्किन की मूजी बीमारियों में मुब्तला इंसान का इलाज हो सके। जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। लुरलाई में मुखैर हजरात की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन बैग्स तकसीम किए गए। नेमतुल्लाह नासिर की रिपोर्ट। लुरलाई मोहम्मदिया फाउंडेशन की ज़ेर एहतमाम इमरान रियाज फाउंडेशन की रजाकारों की निगरानी में लुरलाई के गरीब और नादार अफराद में 250 राशन बैग और नकद रकम तकसीम किए। राशन बैग में घी, चीनी, दालें और दीगर रोजमर्रा की अशिया शामिल थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा और सिर्फ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के गरीब और सैलाब ज़दगां के लिए ये इमदाद मोहम्मदिया फाउंडेशन को भेजा गया है। बलूचिस्तान के तकरीबन 4 अजला में ये फूड पैकेज दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि बैरून मुल्क में काम कर रहे हैं, हमेशा उनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं और उन्हीं की वजह से आज ये उनकी आवाज़ बन के यहाँ पर लोगों को राशन दिया जा रहा है, कैश में पैसे दिए जा रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी के दौर में मोहम्मदिया फाउंडेशन और इमरान रियाज फाउंडेशन जैसे खैराती इदारे लुरलाई के गरीब आवाम के लिए किसी नियामत से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ नेमतुल्लाह नासर, सच टीवी, लुरलाई।
तजावजात माफिया की शामत आ गई। पीर महल में असिस्टेंट कमिश्नर ने 12 एकड़ रिहायशी रकबे की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। नौमान चौधरी की रिपोर्ट। पीर महल डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह अरशद बदर की हिदायत पर तहसील कॉम्प्लेक्स के मुलहका इलाके बी प्लाट और मुख्तलिफ इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टन का कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्का पटवारियों के हमरा कार्रवाई करते हुए तजावजात गिरा दी गई। कार्रवाई के दौरान 12 एकड़ सरकारी राजी वागुजार करवा ली गई। सरकारी राज की मालियत तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि सरकारी राजी पर कब्जा किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत पे डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह के प्लान के अकॉर्डिंगली हमने आज का ऑपरेशन लेआउट किया है। तमाम जो नाजायज़ काबिज़ीन थे उनके खिलाफ एक तरह की कार्रवाई की गई है और उनको एक इलीगल इंक्रोचर्स को मैसेज है कि आइंदा से उन्होंने स्टेट लैंड पे ऑक्यूपेशन नहीं करनी जो कि इलीगल है और ये आज उनको एक लेसन मिला है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि सरकारी राजी पर कब्जा कानूनन जुर्म है। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाराचनार में पब्लिक लाइब्रेरी में किताब के मौजू पर स्टडी सर्कल मुनक्कद किया गया जिसमें तलबा समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। जावेद पंगश की रिपोर्ट। पाराचनार में साबिका पॉलिटिकल इंतजामिया का 40 साल पहले तमीर करदा वाहिद पब्लिक लाइब्रेरी ज़बोहाली का शिकार है और डिजिटल दौर मोबाइल के इस्तेमाल ने पाकिस्तान में किताब बीनी को बहुत नुकसान पहुंचाया। पाराचनार की इस वाहिद लाइब्रेरी में मुनक्किदा स्टडी सर्कल में लाइब्रेरी और किताब बीनी की अहमियत उजागर करने और पब्लिक लाइब्रेरी को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई, जिसमें लाइब्रेरी और किताब की अहमियत को बढ़ाने के लिए इकदाम पर जोर दिया गया। आजकल जो नई नस्ल है वो किताबीनी से बहुत दूर है। हम यानी इस स्टडी सर्कल के वास्ते हम यानी जो नई नस्ल है उसमें यानी नई नस्ल में किताबीनी की शूर है उसको उजागर हम करना चाहते हैं कि ताकि उनमें किताबीनी का शूर दोबारा से यानी उजागर हो जाए। स्टडी सर्कल में मकामी इंतजामिया की जानिब से बाज़ औक़ात इस वाहिद पब्लिक लाइब्रेरी को सरकारी दफातर में तब्दील करने की कोशिशों की भी मजम्मत की गई। जावेद बंगश, सच न्यूज़, पाराचनार, जिले कुरुम। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के मशहूर और मारूफ तफरी मकाम टियर 3 पे रन विदास के ज़ेर एहतमाम फुल मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। सैकड़ों तलबा व तालिबात समेत दीगर शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने रेस में भरपूर शिरकत की। खुर्रम मलिक की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के सियाहती मुकाम ट्रेल 3 पर रणवीर दास ने फुल मैराथन रेस का इनकाद किया। इसका मकसद रोजमर्रा की जिंदगी में वर्जिश की अहमियत को उजागर करना था। सर्द मौसम शहरियों को रेस में शमूलियत से ना रोक पाया। I look forward to such events in the future as well and we definitely need more of these events. I would say all over Pakistan. जिसपे पूरे पाकिस्तान से बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन है। पिछले साल से बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन है। डेनमार्क एम्बेसी ऑफिशियली जो है वो पार्टिसिपेट किया हुआ है। रेस की 2 कैटेगरीज बनाई गई थी जिसमें 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर रेस शामिल थी। इब्तिदा से ही बच्चों में शऊर और दिलचस्पी के लिए बच्चों के लिए भी खसूसी रेस का इनकाद किया गया। मैं इधर रेस के लिए आया हूँ ताकि मैं थोड़ा मज़ा कर लूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रेस के लिए। बच्चे भी किसी से पीछे न रहे और सख्त सर्दी में खूब बढ़ चढ़कर रेस में हिस्सा लिया। सर्दी की रातों में दोस्तों के संग बैठकर अलाव जलाकर मौसम सरमा की सौगात और सुर और ताल के ऐसे तार बखेरे कि माहौल को गर्मा कर मौसम सर्द के एहसास को काफूर कर दिया। आसिफ रजा की रिपोर्ट। मौसम सरमा की सर्द रातों में रात गए तक दोस्तों के हमरा अलाव जलाकर उसके गिर्द हल्का बांधकर बैठना और महमे गुफ्तगू होना और साथ सुर और ताल का एहतिमाम करना सिंध की कदीम तरीन सकाफतों में से एक है, जिसे आज के दौरे जदीद में भी सकाफत के दिल दादाओं ने इसे जिंदा रखा हुआ है। नवाबशाह के शहरी ने अपने दोस्तों की हमरा शबे दोस्ता के नाम से मच कचेरी को दोस्ता कचेरी का नाम दिया। महफिल शबे दोस्ता में नवाबशाह की मशहूर गजल गायक साबिर अली भट्टी की सुरीली आवाज ने एक समा बांध दिया। मच कचेरी जहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग नौजवान जो है ना अक्सर और बेशतर जब सर्द रातें होती थी और सर्द हवाएं होती थी तो इस किस्म की वो महफिलें वो लगाते थे। मैं आउट कंट्री से आया हूँ पर मैंने ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा है वहाँ पर। मुझे यहाँ पे बहुत मजा आया। शबे दोस्ता की महफिल में मौसम सरमा की खास सौगात खुश्क मेवा, सूप, गाजर का हलवा और कहवे की गरम गरम चुस्कियों ने सर्दी का एहसास नहीं होने दिया और तमाम दोस्त खूब लुत्फ अंदोज हुए। प्यार भरी बातें हों तो तवील तरीन रातें भी जो हैं वो पलक झपकते गुजर जाती हैं और एहसास नहीं होता कि सर्दी की ये सर्द रातें तवील हैं। कैमरा टीम के हमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, नवाबशाह।
इलाकाई खबरनामों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।